Okay. Yes. Hi. Welcome all. So yes, yesterday we have seen about we have learned about this first we can say first chapter or topic, like what is software and what are the different types of it, right? We have seen the definition, who develops the software. Then with the help of simple example we have understood like what is software, right? What is computer program. Then we have seen what are the different types of software. Okay, out of that we have seen most commonly used softwares, that is system software. Then second thing is the programming softwares which we are going to implement or use in case of our automation. Okay guys, please keep on mute. Okay. Okay, thank you. Okay, and a third type of it is the application software, and we have seen some of the examples like web, mobile, and desktop app. Out of that, we have discussed more on the web application side, right? And also we have seen some basic commands in order to check IP address, and then in order to ping the IP address, that basic commands we have seen, right? Okay, fine. And the mobile app, as we know, and the desktop as which we used to install directly into the PC. Okay. So yes, so this is all about the topic which we have covered yesterday. So yeah, okay. So let's continue with the today's Your topic. voice is poor, not Hello, listenable. hello. Now please check, guys. I think uh my Yes, mic. sir, no problem. No Okay, problem, sir. okay, fine. Guys, see, yeah. If anyone found like voice is dropping and all, please rejoin. Okay, thank you. Okay. So yes, like yesterday we have covered the first one topic. So today we are going to see the main topic related to the testing itself. That is the what is software testing, right? Yesterday we have seen like what is software and what are the different types. Always second question comes in a mind, or question comes like what is software testing, right? We have seen software. So yeah, let's do some theory part so that you'll have understanding about the software, right? We have seen different types, their examples and all. Okay, so see, first point, software testing is a part of software development process. Okay, we'll try to understand what does it mean. Okay, हम इस पे डिस्कस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. मतलब फॉर एग्जांपल जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, ओके, इसका जो भी इंटर प्रोसेस रहेगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट, डेवलपमेंट टू द लाइव, टू द लाइव, ओके, टू द लाइव. ओके, सो इसका क्या मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल इन एनी कंपनी कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वर्क चल रहा है और वो लाइव हो गया, इट मीन्स वो मार्केट के लिए, यूजर्स के लिए अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, राइट, सो इट इज ऑलरेडी इन द मार्केट, राइट, एंड फ्रॉम द बैक एंड साइड or from the development side, there different developers are already working, testers are also already working, but one of the like stable version is already in the market. Okay, so start to end journey of the software is nothing but the software development process. Okay, and inside the software development process we have seen two important role, one is the developer and another one is the tester, right? Out of that we are going to morely focus upon testing role, right? So software development process is nothing but from the beginning. Related to this, we are going to see one a common model software, and we are going to see software development life cycle. In this model you'll able to understand what all are the phases, मतलब इसमें कौन कौन से phases है वो आप इसमें देखने वाले हैं हम, right, going forwards. SDLC means software development. Okay, software डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब किसी भी चीज का है ना एक साइकिल, लाइफ साइकिल होता है, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं ह्यूमन, राइट, तो हम लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू द एंड ऑफ आवर लाइफ, राइट, कंप्लीट एक जर्नी होती है हर एक चीज का, कोई भी है वो, लाइक व्हीकल हो, कोई भी चीज हो, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? सो लेटर ऑन उनको बिल्डअप किया जाता है, लेटर ऑन
उसका एक कंप्लीट व्हीकल बिल्डअप होता है, राइट? वो मार्केट में आता है, देन हम उसको यूज करते हैं, उसका भी एक एंड ऑफ लाइफ होता है काइंड ऑफ, और उसमें भी अपडेशन चलते रहते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन आता है, मॉडिफिकेशन होता है। सिमिलर गोज टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आल्सो। एक बार सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया ना, तो उसके क्या चलते रहते हैं, मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं, और उसके हिसाब से उसके वर्जन्स अपडेट होते हैं। इसीलिए हम कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो उसका अपडेटेड वर्जन अपडेट करने के लिए हमें वो बोलता है, राइट, बार बार। ओके, बिकॉज न्यू फीचर्स एडेड होते हैं, न्यू बग्स फिक्स होते हैं, जो भी उसमें इश्यूज है, डिफिकल्टीज है, वो फिक्स अप होता है। तो इसके फेजेस हम एसडीएलसी में कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके बारे में हम डिटेल देखेंगे इन केस ऑफ एसडीएलसी चैप्टर। ओके, देन सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे देखिए फोकस करना है हमें वन बाय वन पॉइंट पे, सो दैट you'll have more clarity. Okay, software testing is an activity to detect and identify defects in the software. Okay, सिंपल लाइन है। अभी यहाँ पे जो न्यू वर्ड है, ये तो मतलब जो 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 भी है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एक्टिविटी, एक्टिविटी इन सिंपल क्या है, एक तरह से काम ही है क्यूए का, राइट? टेस्टिंग का काम ही है, राइट? क्या काम है? डिटेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है हमें कि डिफेक्ट कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट, राइट, फिजिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई पानी की टंकी मैन्युफैक्चर, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसका जब क्वालिटी चेक होता है तो वहां पे ऑन अ फिजिकल लेवल, राइट, उसको चेक किया जाता है कि बस इसकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है क्या, मतलब, राइट? सो उसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर बिल्डअप होगा, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उसमें हम एज लाइक फ्रॉम द टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू या टेस्टिंग साइड से क्या चेक करते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो भी है ये फंक्शनल है क्या, इसमें कुछ इश्यूज है क्या, राइट? क्योंकि आप अगर देखते हो ना, कई वेबसाइट या कई सॉफ्टवेयर अगर उस पे लोड आता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी यूनिवर्सिटी की साइट देखते हो आप, कब रिजल्ट आता है, राइट, तो सेम डे पे क्या होता है, सिस्टम हैंग होती है। कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट आप देखते हो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, राइट? तो उतने नंबर ऑफ यूजर एट ए टाइम सिमिलर रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो इन दैट सिनेरियो डिफरेंट, मतलब वो प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन इन द सेंस लाइव है, राइट? मार्केट में यूजर्स उसका यूज कर रहे हैं, राइट? वो सिनेरियो में भी लाइक वो सिनेरियो में भी इश्यू आते हैं। एंड वाइल मतलब मार्केट में या प्रोडक्ट आउट ऑफ द टेस्टिंग, मतलब इंटरनली पहले टेस्ट होता है, लेटर ऑन वो मार्केट में रिलीज होता है, उसके फेजेस भी देखेंगे हम, राइट? बिफोर गोइंग टू द मार्केट जो इंटरनली टेस्टिंग चलती है उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो डिफेक्ट, डिफेक्ट इट मीन सिंपल उसमें कुछ इश्यूज है क्या, एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो, राइट? डिफेक्ट इट मीन्स जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो हम क्रॉस चेक करते हैं। सो रिलेटेड टू डिफेक्ट आप एक एक दो वर्ड्स याद रखिए, डिफेक्ट्स। इसके रिलेटेड है ना दो चीजें आपको, एक्सपेक्टेड, ओके, एक्चुअल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है, राइट? प्रोडक्ट कोई भी हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। और एक्सपेक्टेड, हमें क्या एक्सपेक्टेड है उस प्रोडक्ट से, राइट? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड आउटपुट, वी कैन से एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, एक्चुअल रिक्वायर्ड, एक्चुअल रिक्वायर्ड जो भी मार्केट की रेट नहीं रहेगी उसके हिसाब से हम लाइक उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और एक्सपेक्टेड, राइट, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हम एक्शन करके देखेंगे कि पर्टिकुलर जो भी रिक्वायर्ड था वो हमें एक्सपेक्टेड मिल रहा है क्या, ठीक है? लेट्स सी। ओके, सो या टू काइंड ऑफ रहेंगे वर्ड्स, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। जो ओके, आई विल कीप इट शॉर्ट। ओके, ये दो वर्ड याद रखो रिलेटेड टू डिफेक्ट, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। ओके, एक्चुअल मतलब जब भी हम टेस्ट करेंगे वो टाइम पे हमें जो भी आउटपुट मिलेगा, दैट वन इज द एक्चुअल वन। एंड एक्सपेक्टेड मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, सो ड्यूरिंग टेस्टिंग, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ड्यूरिंग टेस्टिंग, ओके, एंड एक्सपेक्टेड वुड बी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इन्फोसिस का, राइट, या कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो ये क्या करती है, प्रोजेक्ट पे काम करती है, राइट?
प्रोजेक्ट्स पे इनका काम चलता है। किसका प्रोजेक्ट चल रहा है? फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है। किस चीज के लिए चल रहा है? फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना है, राइट? फॉर एग्जांपल www.sbi.com, ये वेबसाइट वेब एप्लीकेशन उनको चाहिए, राइट? सो रिस्पेक्टिव जो भी वेब एप्लीकेशन डेवलप होगा उसमें जो भी रिक्वायरमेंट दी रहेगी उसके हिसाब से हम टेस्टिंग में क्रॉस वैलिडेट करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से एप्लीकेशन चल चल रहा है नहीं चल रहा। जो भी यूजर है वो अगर कुछ गलत इनपुट डालता है, कुछ गलत सिलेक्ट करता है, तो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करता है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये डिटेल में है आगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ आप ये दो वर्ड से याद रखो, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। ओके, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू डिलीवर द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, राइट? सिंपल। मतलब एसबीआई अगर हम पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप करता है तो उनकी कुछ ना कुछ तो कॉस्टिंग इन्वॉल्व रहेगी, राइट? सो दे ऑलवेज विल बी एक्सपेक्टिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे हम मार्केट में जाते हैं या कोई भी नॉर्मल चीज परचेस करते हैं तो हमें चाहिए ना कि कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल लेने जाते हैं, 10K का मोबाइल चाहिए, उसमें 8 GB रैम चाहिए, रोम भी ज्यादा चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट? लेकिन हमें क्या करना पड़ता है उस सिचुएशन में? अगर बहुत ही हाई कॉन्फ़िग की रिक्वायरमेंट है तो हमें बजट भी इंक्रीज करना पड़ता है। सेम चीज अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर एज वेल। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी ना उसके हिसाब से बजट बिल्डअप होता है। जैसी ही रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से उसका बजट भी मॉडिफाई होता है, राइट? तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे टू द क्लाइंट, इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस अंडर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ सिंपल है पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट? जो हम एसडीएलसी में डिटेल में देखेंगे। सेकंड थिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ एक्टिविटी, मतलब ये एज अ टेस्टर का काम है टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर। सो डिफेक्ट क्या है इन शॉर्ट? कि एक्चुअल जो ड्यूरिंग हम टेस्टिंग करेंगे उस टाइम हमें जो आउटपुट मिला है एंड एक्सपेक्टेड जो ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट हमें दिया गया है, राइट? फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेटर ऐप बनाना था, ओके? कैलकुलेटर का ऐप बनाने की रिक्वायरमेंट थी, ओके? वेबसाइट के ऊपर ही उसमें लॉजिक क्या था? 2+2 आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जांपल 2+2 आना चाहिए 4। बट जब ये एप्लीकेशन बना, राइट, डेवलप हुआ और हम टेस्ट कर रहे हैं तो 2+2 हमें क्या मिल रहा है? फॉर एग्जांपल 2+2 हमें क्या मिल रहा है? 5। ओके, सो इन दैट सिनेरियो 2+2 = 4 होना चाहिए, ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। सो दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। बट हमें क्या मिला? एक्चुअल में 2+2 कैलकुलेटर में हमने पुटअप किया और इक्वल प्रेस किया तो 5 मिला। दैट इज योर एक्चुअल आउटपुट। ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें मिलेगा। अगर ये दोनों में मिसमैचिंग है, मतलब दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो इन दैट सिचुएशन हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? डिफेक्ट। ओके, इसका डिटेल में भी है बाकी की चीजें। ओके, so in a similar way, right? And third point is, objective of software is to deliver a quality product to the client, because there is always tie up in between uh, in between company and clients, right? So that they'll have certain condition clause, right? For parameters are defined for all this thing, and at the end of day we are building that product for a client, so it should be a quality product, right? Okay, so yeah, this is all about the software testing, right? We should have some basic understanding about the software testing. Like, what is software testing, right? It's a part of software development process. It's an activity basically performed by a testing persons, right, in order to detect and identify defects in a software. What is defect? It's a difference in between, you can say it's a difference in between actual and expected output. Okay, ठीक है. And later on, third one point is, objective of software testing is to deliver the quality product. Okay, so yeah, this one is the another question, right? We'll see next one question. Okay, so if you have any question, guys, now we can discuss. Okay, as yes. Okay, okay. Just now we have seen like what is software testing. Okay, now we'll talk more about like what is software quality. In the third point, we discuss like what product or software should be a quality product, right? Okay, so next terminology is, what is software quality, right? Software quality, in simple term, quality, it totally depends upon how we are measuring that thing, right? Okay,
सो अगर सिंगल लाइन में डेफिनेशन करनी है तो सी सॉफ्टवेयर quality of any product is defined based on the below parameters. हम बेसिक पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हम कब क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बोलेंगे उसके लिए, राइट? और सॉफ्टवेयर सी द फर्स्ट पैरामीटर इज सॉफ्टवेयर शुड बी बग फ्री, ओके? जो यहाँ पे हमने डिफिकल्ट बोला है ना, ओके, एज ऑफ नाउ आप सिमिलर समझ लो, ओके? ठीक है, बग और डिफेक्ट, द सॉफ्टवेयर शुड बी बग और डिफेक्ट फ्री। मतलब क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर चलना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट 2 + 2 = 4 की है तो हमारे कैलकुलेटर में भी आउटपुट 2 + 2 = 4 ही आना चाहिए, राइट? सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों भी मैच होने चाहिए। देन जो भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है वो पर्टिकुलर टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमें बोला है कि हमें जो वेब एप्लीकेशन बनाना है वो हमें चाहिए 1 साल में और हमने लगा दिए 2 साल, राइट? सो उसमें क्या होगा, क्लाइंट की कॉस्टिंग एड ऑन हो जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे जो भी पर्सन्स काम करेंगे ना उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, सो उनका कुछ ना कुछ रिकरिंग कॉस्ट रहेगा, राइट? सो प्रोजेक्ट शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, so that is the one parameter. Then project should be delivered within a budget, right? मतलब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो भी XYZ अमाउंट को फिक्स हुआ है उसी अमाउंट के अंदर होना चाहिए। These are the ideal parameters, okay? And the software should meet the client requirement and expectation. client की जो भी नीड थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो क्या होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक इट शुड बी मेंटेनेबल, मतलब ऐसा नहीं कि आज बना दिया और लाइक क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया और कल एप्लीकेशन बंद पड़ गया, कल मतलब 4 महीने में 6 महीने में बंद पड़ गया, राइट? सो इसी चीज के लिए क्या होता है ना, मेंटेनेंस टीम काम करती रहती है। हर एक कंपनी का लाइक काइंड ऑफ AMC कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है फॉर अ सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर में भी आपने देखा रहेगा, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसका टेक्नीशियंस या वेंडर लोग क्या लेते हैं, उसका AMC, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वारंटी वो लेंगे और विद इन दैट रेंज अगर वो बंद पड़ता है, कुछ भी होता है, तो आप उनको कॉल करके बुला सकते हो, राइट? सो इन अ सिमिलर वे मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन अप होता है फॉर सॉफ्टवेयर पार्ट आल्सो, जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर का अपडेशन है, जो भी उसका मेंटेनेंस है, पर्टिकुलरली मैनेज किया जाता है, राइट? सो सिंपल क्वेश्चन आता है गाइस कि लाइक व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हाउ वी कैन डिफाइन द सॉफ्टवेयर इज क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो फॉर डिफाइनिंग द quality of software, these are the somewhat parameters we can have in place, right? So software should be bug free, that particular software should be delivered to the client on time, software should be within a budget, it should meet the client requirement, and it should be maintainable, right? So these are somewhat parameters for the software quality. Then and then only we can say like software is a quality product. There are n number of parameters, but these are the some common parameters, okay? Like what is software quality, you can make a like post the sessions once you receive the notes now, later on you can have these notes in your notebook as well, okay? Sir, please repeat one. Bug and defect free. Explain, please. Yes, sure. For example Lena, yeah, we have dedicated chapter for this, okay? So like here, for example, in this situation, uh, Infosys having a project of SBI, right? And this one is the, for example, their web application, and into the website when you visit, लाइक आप अगर जाते हो वेबसाइट पे, ओके, वहां पे फॉर एग्जांपल SBI एक बैंक है, तो ये FD भी प्रोवाइड करता है, RD भी प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, देन लोन भी प्रोवाइड करता है, राइट? सो उसके लिए उनको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर चाहिए, EMI कैलकुलेटर, सिंपल समझ लो। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पे है ना, EMI कैलकुलेटर है, ओके? फॉर एग्जांपल यस, EMI कैलकुलेटर है, तो वहां पे आपने क्या किया, आपके जो भी नंबर ऑफ मंथ्स है, ओके, नंबर ऑफ मंथ्स टाइप अप किए, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मंथ्स आपने 12 मंथ्स चूज किए, ओके? इंटरेस्ट रेट जो भी है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 12% पर एनम, ओके? साल का 12%, ओके, 12% पर एनम है, और आपको चाहिए अमाउंट फॉर एग्जांपल
आपको चाहिए अमाउंट, लाइक जस्ट एन एग्जांपल के लिए आपको चाहिए अमाउंट 1,20,000 रुपीज, ओके, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, ठीक है, 1,20,000 चाहिए हमें लोन, ओके। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, देखिए हमें नंबर ऑफ ईएमआई कितने चूज किए, हमने 12 चूज किए, राइट। इंटरेस्ट रेट क्या है, 12% है, ओके। ओके देन एंड पर लाइक अमाउंट कितनी चाहिए हमें, 1,20,000। तो हर महीने आप अभी के लिए ना एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट को भूल जाइए, ओके। तो आपको विद जीरो इंटरेस्ट पे कितना पे करना पड़ेगा हर एक महीने, बताइए। यस 10,000. यस राइट। सो आपका ईएमआई का जो भी अमाउंट रहेगा वो क्या होगा, 10,000, राइट। सो ये कैसे कैलकुलेट किया, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, राइट। सो लेकिन इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने वेबसाइट पे ये ईएमआई कैलकुलेटर दिया है। यूजर ने, मतलब जो भी कस्टमर है पर्टिकुलर बैंक का या कोई भी नॉर्मल यूजर है जो वेबसाइट विजिट करेगा और ये पर्टिकुलर डिटेल्स एंटर करेगा, तो उसने क्या किया, 12 मंथ्स एंटर किया, ओके, फर्स्ट वन, एंड देन सेकंड उसका अमाउंट एंटर किया, और उसने इंटरेस्ट रेट में ना एज ऑफ नाउ जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या चूज किया है, 0% है फॉर एग्जांपल, ओके। सो इन दैट सिचुएशन उसको हर एक मंथ का ईएमआई का अमाउंट कितना दिखाना चाहिए, 10,000, बट वहां पे बाय मिस्टेकली 9,000 दिखा रहा है, 12,000 दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तो मतलब रिजल्ट जो है हमें एक्सपेक्टेड क्या था 10,000, बट हमें जो एक्चुअल में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 11,000, like different amount other than 10,000. So in that situation we will be marking it as a defect or bug. मतलब जो भी आपको चाहिए एक्सपेक्टेड जो है और एक्चुअल जो है दोनों का सिमिलर है तो ही देन एंड ओनली आपकी टेस्ट केस पास होगी। अगर उसमें कुछ भी वेरिएशन है तो आपकी टेस्ट केस क्या होगी, फेल होगी, राइट। समझ गए मतलब आप डिफरेंस इसमें। बग मतलब क्या, यस आपको जो एक्सपेक्टेड था और मिल क्या रहा है, राइट, दोनों में डिफरेंस है। सो दैट इज द सॉफ्टवेयर बग वी कैन जनरली से, ओके, व्हिच नीड्स टू बी फिक्स फ्रॉम डेवलपमेंट साइड, ओके, ठीक है, चलो ग्रेट, okay. So yes, this point we have covered, like what is software quality. We have seen bug or defect, software should be bug or defect free, मतलब ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम चेक करेंगे ये ड्यूरिंग द टेस्टिंग, और वहां पे कोई भी अगर पैरामीटर हमें ऑब्जर्व होता है कि दोनों में डिफरेंस है रिक्वायरमेंट में और एक्चुअल आउटपुट में, तो वो टाइम हम क्या रिपोर्ट करेंगे, डिफेक्ट या बग रिपोर्ट करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट, ओके। वन मोर टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, उसी पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ओके। गाइस आपके मीनवाइल अगर कुछ इसके रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो एंड जो भी कॉमन क्वेश्चंस है विल टेक इन द एंड, ओके। कल हमने देखा था गाइस लाइक प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें हमने कंपनीज के टाइप बोले थे, बोलो फर्स्ट वन आई विल राइट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है रे, हेलो, Service based. यस राइट, प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है, सर्विस बेस्ड जो कंपनीज है वहां पे क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, ओके, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू, ओके। एंड सेकंड थिंग, प्रोडक्ट कहाँ पे डेवलप होता है, उसी के नाम में है, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ओके, चलो ग्रेट गाइस, प्लीज म्यूट, ओके, थैंक यू, ओके। सो हम डिफरेंस देखा था, या इन द लास्ट, या इन द लास्ट हमने डिफरेंस देखा था लाइक प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में, राइट। तो प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है, बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज में, और प्रोडक्ट कहाँ पे बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। दोनों भी कंपनी जो है वो क्या बिल्ड करती है, सॉफ्टवेयर, राइट। स्टिल स्टिल दोनों के लिए डिफरेंट नेम है, हमने यहाँ पे कवर अप किया था, ओके। आई विल गो बैक, ओके फाइन। यहाँ पे आईटी कंपनीज के टाइप्स में देखा था कि लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, राइट, और उनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। उसमें भी कंपनीज में डिफरेंट सेक्टर होते हैं, हर एक सेक्टर में डिफरेंट टीम होती है, राइट, और हर एक टीम में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड सेकेंड टाइप हमने देखा था दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो खुद के प्रोडक्ट होती है एज पर द मार्केट नीड बिल्ड करती है, और यहाँ पे जो भी है एज पर द
क्लाइंट नीड बिल्ड करते हैं, राइट। दोनों पे जगह पे क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, राइट। बस टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस है, सॉरी। ओके, ठीक है, फाइन। ओके, सो यस, या, like project relates to the service based company and product relates to the your product based company. And here software is built, see, software is developed, we can say software is developed, okay, based on client need। जो भी client रहेगा पर्टिकुलर कंपनी का, उस उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बिल्डअप होगा विद इन अ कंपनी। और इन केस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, ओके, सॉफ्टवेयर इज डेवलप, ओके, सॉफ्टवेयर इज डेवलप बेस्ड ऑन मार्केट नीड, राइट। मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या चलने वाला है, राइट, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट को चाहिए, उसके हिसाब से जो भी मार्केट सर्वे होता है, उसके बेस पे जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज काम करती है, राइट, वहां पे क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, फाइन। सो यस, yeah, this is about the project and project relates to your service based company and product relates to your product based company. Project is built based on the client need and product is built based on the market need। okay, यहाँ पे क्या रहेगा, स्पेसिफिक टू द क्लाइंट रहेगा। मतलब एसबीआई के लिए अगर प्रोजेक्ट किया है, कोई वेबसाइट बिल्डअप किया है, तो सिर्फ एसबीआई यूज कर सकता है। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये प्रोडक्ट्स है इनके कंपनीज के, राइट, तो कोई भी यूज कर सकता है एंड यूजर्स, उसमें कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, राइट, सिंपल है। टिल हियर कुछ क्वेश्चन गाइस, कोई क्वेरी क्वेश्चन है इसमें related to the technical stuff, you can ask। okay, fine, great, okay, chalo, okay, so yeah, till now we have understood like what is software, what is software testing, what is software quality, right, and what is project, what is product, right? So next one question comes in a picture, like why do we need to have a testing in place, right? Why do we need to do testing? Okay, why we are doing the testing, right, in a short, okay. So there is a purpose, right, behind it, okay. So what is the like purpose for performing the testing, for doing the testing, that we'll see, okay, okay. So इसमें क्या होता है ना, see, we'll cover one by one, okay. The ultimate goal of testing is to deliver the quality product to the customer or client. Because why? Because client is like having tie-up with the companies, okay. They already like they already paying some budget for a particular project, so they would be expecting some quality product, right? So the ultimate goal for testing is to deliver a quality product to our customers or client. So this, yes, this one is the first statement. Why do we need testing? Because testing ensures the quality of product is good or not, right? The second point is, see, the second point is testing ensures that product is meeting the requirement of client, okay. So the while during testing we are checking the requirement as well as actual output. So in that scenario we are validating the software, right? So hence testing ensures the product meeting the requirement of client। मतलब for example यहाँ पे जो भी हमने requirement देखी है, right, 2+2 4 होना चाहिए, so this one is the requirement, but actual expected हमें मतलब at actual में क्या आ रहा है, 2+2 5 आ रहा है। So there is a mismatch in the like requirement and actual, right? सो वो सिनेरियो में हम क्या रिपोर्ट करेंगे, डिफेक्ट या बग, राइट? सो हमें वही इंश्योर करना है ड्यूरिंग द टेस्टिंग कि जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने हमें दी है या जो भी मार्केट की नीड है उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं या नहीं, राइट? वो पर्टिकुलरली टेस्टिंग में हम इंश्योर करते हैं। ओके, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज गाइस, सी, the main objective of testing is to detect and identify defect in the product in order to ensure the quality product, right? टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, हमें क्या फाइंडिंग्स करनी है, तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट है
उसमें कुछ डेविएशन है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट क्लाइंट को हम जो भी प्रोडक्ट देंगे वो कैसा प्रोडक्ट रहेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, राइट। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट रहेगा क्वालिटी रहेगा, बिकॉज वी ऑलवेज वांट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। मतलब हमें फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल परचेस किया 20,000 का और वो एक ही महीने में बंद पड़ गया, तो हम कस्टमर केयर में जाके चिल्लाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं, राइट। अगर कोई मोबाइल हमने जस्ट न्यूली परचेस किया है, उसको यूज भी नहीं किया था और बार बार इश्यू दे रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं और नेक्स्ट टाइम वो कंपनी का मोबाइल ही नहीं लेते, राइट। सो सिमिलर गोस टू हियर आल्सो। मतलब किसी कंपनी का अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कोई कंपनी किसी क्लाइंट के लिए, अगर उनका सॉफ्टवेयर एक बार लाइक मतलब क्वालिटी नहीं मिला, राइट, सो वो अगर दूसरा प्रोजेक्ट है उन्हीं के पास तो नहीं देंगे, राइट। सिंपल लॉजिक है। इन अ सिमिलर वे जो भी आईटी कंपनीज है वो भी उनके एंड से इंश्योर करती है कि क्लाइंट को जो भी प्रोडक्ट देना है वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, राइट। सो हेंस इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वी आर परफॉर्मिंग टेस्टिंग। Simple. Okay. So these are the somewhat key points about the why do we perform the testing. Any question here, guys? क्योंकि सब एक दूसरे पे है ना। यस यस प्लीज। सब क्वेश्चंस है ना, मतलब सब पॉइंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। तो आपको जो भी अननोन कीवर्ड्स मिलेंगे ना वो आगे आगे आपके कवर अप होते जाएंगे। फिर भी इन केस आपको कुछ क्वेरी की डाउट है तो आप पूछ सकते हो, राइट। ठीक है, ओके फाइन, चलो लेट्स सी। ओके, रिलेटेड टू दिस अभी जैसे हमने देखो विद इन अ 2 to 3 टाइम्स हमने डिस्कस किया कि और किसी ने पूछा भी क्वेश्चन कि लाइक व्हाट इज बग, व्हाट इज डिफेक्ट, राइट। सो बेसिकली here are the three terminologies. Okay, one is your error, then another one is bug and failure. Okay, you can consider it as defect. Okay. Some of the people used to say bug, some of the people used to raise a defect. It totally depends upon the convention. Okay, so यहाँ पे थ्री वर्ड्स है तो हर एक का मीनिंग देखते हैं, राइट। सो फर्स्टली विल कवर द एरर, राइट। हमें अभी डिफेक्ट या बग के बारे में थोड़ा पता है। विल सी अबाउट द एरर। सॉरी, error means what? Error is an incorrect human action, a simple वन लाइन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी वाइल कोडिंग, सी वाइल कोडिंग वाइल प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामर रहेगा, जो भी डेवलपर रहेगा, उसके एंड से जो भी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स हुए हैं वाइल टाइपिंग वगैरह, राइट। सो वो काइंड ऑफ जो भी इश्यूज रहेगा उनको हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल द टाइपिंग एरर्स मेड बाय डेवलपर व्हाइल राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड कॉजेस एंड प्रोग्राम फाइल रन फेल्यूर। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, राइट। हर एक लैंग्वेज का क्या डिफरेंट रहेगा, रे हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट रहेगा, राइट। ये कीवर्ड हमने यूज किया था। हर एक लैंग्वेज का क्या डिफरेंट रहेगा, सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश में ए टू जेड है, राइट। सिमिलर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के ए टू जेड लेटर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ओके, वैसे ही अगर वो सिंटैक्स में ही इशू है, वो सिंटैक्स वाइल कोडिंग मतलब डेवलपर के एंड से ही वो टाइपिंग करते टाइम कुछ टाइपिंग के मिस्टेक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, राइट। सो वो उनको उसी टाइम ऑब्जर्व होंगे वाइल रनिंग द प्रोग्राम। मतलब जो भी एरर रहेंगे ना वो डेवलपर एंड पे ही मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ठीक है, ओके। और वो फिक्स करने के लिए उनको कोड लेवल पे उनका जो भी प्रोग्रामिंग है उसी लेवल पे उनको फिक्स करना पड़ेगा। एरर सिंपल मींस जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल जावा, ओके, फॉर एग्जांपल सी, राइट। सो पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो भी सिंटेक्स रहेगा उसमें अगर उन्होंने गलती की है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा और वो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम क्या होगा, रन नहीं होगा, राइट। उसी को हम बोलेंगे एरर। ओके, ठीक है। The yes, so this one is the error, that is the incorrect human action. For example, while developing, our developer made some syntax error, right, typing mistakes, so in that situation it is called as error. Okay, second terminologies guys we have just discussed about this, that is the bug or defect. bug और defect क्या है, right? So इसकी अगर definition देखते हैं हम on a theoretical technical side,
So deviation from actual behavior and expected behavior is called as bug or defect. Simple, मतलब जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी 2+2 4 होना चाहिए, बट एट एक्चुअल में हमें मिल रहा है 2+2 5, राइट? मतलब जो भी हमारा डेवलपर है उसने पर्टिकुलरली कोडिंग लेवल पे जो भी लॉजिक बिल्ड किया रहेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ इशू है, राइट? सो अगर दोनों चीजों में रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेड बिहेवियर में हमें अगर कुछ चेंज मिलता है, डेविएशन मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट बग बोलते हैं या डिफेक्ट बोलते हैं, राइट? उसका एग्जांपल देख लेते हैं. For example, we are expecting login should be done with correct username and password. सिंपल है, आपका फेसबुक का लॉगिन है, आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है, उससे आपने यूजर नेम टाइप अप किया, पासवर्ड टाइप अप किया एंड लॉगिन किया. तो आपका एक्सपेक्टेड क्या है एज अ एंड यूजर या एज अ कस्टमर? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा फेसबुक लॉगिन होना चाहिए, राइट? आई शुड बी एबल टू लॉग इन विथ माई यूजर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड. बट क्या होता है ना, सम ऑफ द टाइम्स एप्लीकेशन इज शोइंग लाइक इट इज अ इनवैलिड डेटा. ओके, सो इस सिचुएशन में क्या हुआ? एक्सपेक्टेड जो था वो और एक्चुअल जो है वो मैच हुआ का? मैच नहीं हुआ, राइट? So that is nothing but the defect or bug. So this is a defect, and once we report this defect to the developer called as bug reporting. So basically इसका जो प्रोसेस है बग रिपोर्टिंग, इसका हम कवर अप करेंगे. इसको बोलते हैं बग लाइफ साइकिल. क्या बोलते हैं रे? बग लाइफ साइकिल. आपको आएंगे ये टर्म, बग लाइफ साइकिल, राइट? So yes, we'll see one more time. Yeah, what is defect and bug? It's a deviation from actual behavior and expected behavior, right? Okay, then we have seen the example like when we are trying to log into the Facebook with our username and password, correct username, correct password, but still it is not able to log in, right? It is showing as invalid data. Okay, so in that situation we like our expected behavior and actual behavior is not matching, right? So in that situation we are going to report this defect using the bug reporting tool or using your like Excel, whatever method we are using inside the companies, right? And we are tracking that bug, we are tracking that defect under the bug life cycle. We are going to cover the more phases about this bug into the bug life cycle chapter. Okay, this one is the second terminology. Okay, now what is failure? We'll see about the failure. Okay, there are slightly differences in between three, right? So what is failure? Okay, so the deviation, see, by definition, the deviation in expected behavior of software, okay, of software application identify by the end user in the production environment or live environment is called as software failure. Simple example, for example, अभी जैसे आप फेसबुक लॉग इन कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, ये तो हर एक एंड यूजर के लिए वो अवेलेबल है फॉर एक्सेस, राइट? सो इन दिस सिनेरियो एंड कस्टमर अगर ट्राई करता है उसके वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, और वहां पे अगर वो मैच नहीं होता है, राइट, वहां पे फेल आता है, तो हम उसको इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का फेलियर है, राइट? सो और बग और डिफेक्ट हम कब आइडेंटिफाई करेंगे? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, राइट? सो विद इन दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, राइट? सो ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें जो भी फाइंडिंग होती है वो पर्टिकुलर फाइंडिंग हम अपने डेवलपर्स को रिपोर्ट करते हो, डेवलपर उस पे काम करके उसको फिक्स कर देते हैं, राइट? अगेन हम उस चीज को टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर बग या डिफेक्ट है या नहीं, राइट? बट व्हेन लाइक हमने भी टेस्ट किया, राइट, फिर भी हमें कुछ लाइक वहां पे दोनों भी बिहेवियर सेम मिले, बट कुछ ना कुछ ऐसे कॉर्नर केसेस रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज रहते हैं जहाँ पे हम चेक करना भूल जाते हैं, राइट? जहाँ पे हम चेक नहीं करते, तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है? जब एक्चुअल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, लाइव एनवायरनमेंट में, मार्केट में जब सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है और उसका एक्चुअल यूजर, एंड यूजर जब उसको एक्सेस करता है और उसको जो भी डिफिकल्टी फेस होती है, तो उस सिचुएशन में जो भी डिफिकल्टी रहेगी या जो भी एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर में मिसमैच रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? हम फेल्योर बोलेंगे. सो या दिस इज ऑल अबाउट द एरर. Error is the incorrect
human action. Ideally it's like it is a typing mistakes or syntax level mistakes, right? Second thing is the defect or bug. Within our organization during testing, we are finding a mismatch or deviation in actual and expected behavior is called as bug. And failure is nothing but our software is in production, our software is in live, our software is in market, and end customers are using it and they are not able to log in with their valid username, valid password. At that time we generally called as software failure. Or some of the time you'll see when you are trying to open the mobile application, it is failing automatically, right? So that is also one kind of failure of for that particular software. तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं, उसको रेटिंग कम देते हैं, वहां पे बहुत सारा कुछ लिख देते हैं, राइट? सो यू कैन सी विद इन अ प्ले स्टोर और योर राइट iOS स्टोर ऑल्सो, वहां पे हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रेटिंग देते हैं, उसका जो भी इश्यूज बग्स है ना वो वहां पे रिपोर्ट करते हैं। तो जो डेवलपमेंट टीम होती है ना, वहां से फीडबैक पुटअप करके उस तरह से सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं तो क्लाइंट भी कभी कभी डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं कंपनीज को। कैसे इस पे कुछ क्वेश्चन क्वेरी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आउट ऑफ दैट है ना, ये तो हमें बहुत लगने वाला है इन अपकमिंग सेशंस, इस पे भी मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। बट ऑन अ हाई लेवल अंडरस्टूड, समझा? कुछ क्वेरी क्वेश्चन इस पे, ये पॉइंट पे? So failure software repeat please. यस यस, फेलियर मीन्स आप सिंपली ऐसा पकड़ो कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन है, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, सिंपल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, आपका रिजल्ट डे है, गवर्नमेंट का वेबसाइट कोई भी लास्ट डे है, तो वहां पे आपका आइडियल एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए। अभी ये इसमें अगर कुछ चेंज फाउंड होता है तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का क्या है, काइंड ऑफ फेल्यूर है। और एक चीज, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते हैं और पेमेंट करते हैं, राइट? पेमेंट इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट परचेस हो, लाइक परचेस नहीं होता लेकिन फिर भी उसका पेमेंट हो जाता है, राइट? ओके, सो उसके लिए पेमेंट रिवर्सल का मैकेनिज्म है, राइट? दैट इज ओके। बट फॉर अ पर्टिकुलर फेज वो क्या है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर उसका पेमेंट रिवर्स ही नहीं हो रहा है, उसका कुछ मैकेनिज्म ही वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं है, तो दैट इज द दैट सॉफ्टवेयर फेल्यूर। या कोई फॉर एग्जांपल हम फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट? वहां पे हमने लाइक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट अप किया है, उससे ट्राई कर रहे हैं लॉग इन करने के लिए विथ वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, लॉग इन ही नहीं हो रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ फेल्यूर। एज वेल एज हमने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, राइट? मतलब ये तो ऑन अ स्मॉल लेवल हो गए। कई कई बार आपने अगर देखा रहेगा या रिसेंटली सुना रहेगा, बिग बिग जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी कई टाइम के लिए डाउन होते हैं, राइट? कुछ ना कुछ इश्यूज के वजह से। सो दैट इज व्हाट अ सॉफ्टवेयर फेलियर। गॉट इट गाइस? कुछ क्वेरी एडिशनल इस पे? फेलियर इट मींस एंड यूजर ने, एंड यूजर को अगर उसका जो भी बिहेवियर है उससे अगर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है तो दैट इज द सॉफ्टवेयर फेलियर। ड्यूरिंग कंपनी में हम जब टेस्टिंग करते हैं उसमें कुछ डिफिकल्टीज लाइक मिसमैच फाउंड होता है, तो रिस्पेक्टिव मिसमैच हम किसको रिपोर्ट करते हैं? तो डेवलपर को, तो उसको बोलेंगे बग। एंड डेवलपर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग कोडिंग अगर सिंटैक्स में, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक करता है तो उसको बोलेंगे एरर्स। एज ऑफ नाउ आप ऐसे समझ लो तीनों को, ठीक है? कुछ एडिशनल क्वेरीज गाइस इस पे? अंडरस्टूड? Yes sir. ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, ठीक है, ओके। सो सम ऑफ द टाइम्स हमें है ना एक माइंड में और एक क्वेश्चन आता है इसी चीज के रिलेटेड। अभी तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया ऑन द बग, राइट? या फेल्यूर भी। सो ये चीजें, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा राइट माइंड में कि ये चीजें क्यों होती है, कि लाइक व्हाई सॉफ्टवेयर हैज अ बग। हम इतना इंटरनली टेस्ट भी करते हैं, डेवलपर भी उनके इनसे कुछ ना कुछ तो टेस्ट करते रहेंगे, राइट? इसका इनका भी टेस्टिंग रहता है, उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, वो भी हम कवर अप करेंगे, ठीक है? हम एज अ टेस्टर यहाँ पे भी चेक करते हैं बहुत सारा कुछ, राइट? फिर भी वो सॉफ्टवेयर में बग क्यों होता है, एंड यूजर को उसका फेलियर क्यों फेलियर
क्यों दिखता है, या हमें भी इतने सारे डिफेक्ट्स क्यों मिलते हैं। रिक्वायरमेंट अगर 2+2 4 ही का लॉजिक लगाना है तो डेवलपर के एंड से गलत लॉजिक क्यों लगाया जाता है, राइट। सो इसके भी मल्टीपल रीजंस है, उसके सम ऑफ द रीजंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर। ओके, मतलब सॉफ्टवेयर में फॉल्ट या डिफेक्ट क्यों आते हैं, राइट। सो उसके बेसिक्स रीजंस है। ओके, फर्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन इन बिटवीन टीम। फॉर एग्जांपल आपका डेवलपमेंट टीम है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, आपका टेस्टिंग टीम है, आपका मैनेजर है, आपका एंड कस्टमर है, क्लाइंट है। इन लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो हमें समझ सकता है क्या कि लाइक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या बिल्ड करना है, राइट। सो हमें क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए विथ आवर क्लाइंट, सी with our client, then our management team, right, management team, then developers, okay, developers, then testers। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए रे, कम्युनिकेशन होना चाहिए, सो दैट जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो हमें, हमारे जो भी बिजनेस पर्सन है, यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन होता है विच इज कॉल्ड एज बीए। ओके, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम जब टीम के रिगार्डिंग देखेंगे। तो एंड क्लाइंट होता है, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना उसको बिजनेस साइड पे हैंडल करने के लिए बीए रहता है। बीए मींस बिजनेस एनालिस्ट, ये पोजीशन होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में। जिसे हम बोलते हैं ना, कोई भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सेल्स के बंदे रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसमें सेल्स के पर्सन रहेंगे, या कोई भी शॉप में, राइट। इन अ सिमिलर मैनर जो भी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है उसको अंडरस्टूड करने के लिए, क्लाइंट से रीच आउट करने के लिए बिजनेस पर्सन्स रहते हैं, राइट, हु विल बी मोरली लुकिंग फॉर बिजनेस साइड। इनको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। ओके, ठीक है, फाइन। Okay, PM means your project manager who will be coordinating with the business side as well as your internal team। Okay, so अगर टीम में कुछ मिसकम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला था रिक्वायरमेंट 2+2 4 होना चाहिए, और while डॉक्यूमेंटिंग, while गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, while कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, हमने डॉक्यूमेंट कर लिया कि क्लाइंट की नीड है 2+2 5 होना चाहिए, राइट। और वही डेवलपर को कम्युनिकेट किया गया और डेवलपर ने वही कोड किया 2+2 = 5। लेकिन टेस्टर ने भी टेस्ट किया, रिक्वायरमेंट थी 2+2 = 5 वाली, राइट। सो ये टाइप से हो गया मिसकम्युनिकेशन, और एट द एंड ऑफ डे जब सारा प्रोडक्ट बन गया तो क्लाइंट क्या बोलेगा, अरे हमने तो बोला था 2+2 हमें 4 चाहिए, राइट, बट आपने तो 2+2 5 कर दिया। सो दैट इज नॉट करेक्ट, आपको ये ठीक करना पड़ेगा, राइट। सो ये क्या हो गया, एक तरह से मिसकम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे लेवल पे इस पे मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी आपको डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब डेवलपर का कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजर का कुछ अलग है, बिजनेस एनालिस्ट का कुछ अलग है, क्लाइंट ने कुछ बताया था अलग, राइट। और टेस्टर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसी के हिसाब से हम टेस्ट करते हैं, राइट। सो या दिस इज ऑन द मिसकम्युनिकेशन पार्ट, या टीम में कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि सॉफ्टवेयर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर सॉफ्टवेयर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, राइट। लेकिन क्लाइंट क्या बोलता है कि बस वी नीड अ सॉफ्टवेयर विद इन 1 ईयर, वी नीड अ सॉफ्टवेयर विद इन 6 मंथ। जो भी उनका डेडलाइन रहेगा उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन सॉफ्टवेयर तो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे टेस्टिंग उस पे होना चाहिए, राइट, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, बट ड्यू टू डेडलाइन हम क्या करते हैं, सम ऑफ द पार्ट हम मिस कर देते हैं, राइट। सो उसके वजह से भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से और टाइम कम होने की वजह से भी बहुत सारे बग्स छूट जाते हैं। लेटर ऑन प्रोग्रामिंग एरर्स, राइट, एरर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। मतलब डेवलपमेंट साइड से या डेवलपर के साइड से जो भी सिंटैक्टिकल जो भी एरर्स रहेंगे, सिंटैक्स या टाइपिंग एरर्स, ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग एरर्स। ओके, उसके वजह से भी हमें डिफिकल्टी या बग मिल सकता है प्रोडक्ट में। देन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स मींस क्या, फॉर एग्जांपल ईएमआई कैलकुलेटर का फीचर बनाना है हमें, राइट। उसमें रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ ईएमआईज है, ओके, जो रिक्वायरमेंट है उसमें चाहिए हमें ईएमआई वाला ऑप्शन चाहिए, ईएमआई चाहिए, इंटरेस्ट रेट वाला ऑप्शन चाहिए, ओके, इंटरेस्ट रेट वाला ऑप्शन चाहिए, उसमें टोटल अमाउंट पुटअप करने के लिए ऑप्शन चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ओके, ये क्लाइंट की नीड थी, बट
अभी जैसे मार्केट में देखा कि लाइक इसके साथ उनको और एक एडिशनल चीज वहां पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल उनको क्या चाहिए, कुछ फॉर एग्जाम्पल उस चीज पे उनको डिस्काउंट देना है। ओके, पर्टिकुलर लोन के इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट देना है, या पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी एडिशनल फीचर्स उनको क्या करना है उसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में ऐड करना है, राइट। सो उस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, क्लाइंट को बताना पड़ता है टू द आईटी कंपनीज, राइट, जो भी कंपनी पर्टिकुलरली वर्क कर रही है। सो जैसे ही रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, तो क्लाइंट किसको बताता है, बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट को। बिजनेस एनालिस्ट आगे कम्युनिकेट करता है सबको, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डेवलपर उसको कोडिंग करेगा, और जो भी रिक्वायरमेंट न्यू चेंज आई है उसके हिसाब से टेस्टर उसको टेस्ट करेगा। इसका मतलब कोई भी चेंज आता है ना, तो हर एक स्टेप रिपीट करना पड़ता है। मतलब वो पर्टिकुलर चेंज के लिए उसके सराउंडिंग हमें क्या करना पड़ता है, सारा कुछ स्टेप्स रिपीट करने पड़ते हैं, राइट। सो इट इज वन ऑफ द चैलेंज इन द while finding the bug, right। मतलब बग फाइंड होने के लिए इट इज वन ऑफ द रीजन, राइट, चेंजिंग रिक्वायरमेंट। मतलब आज कुछ बताया था, कल कुछ बताएंगे, राइट। डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए तो टाइम लगेगा, बट उनके अगर फ्रिक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंज है तो उसमें भी हाई चांसेस है कि बग फाइंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज लैक ऑफ स्किल टेस्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है और पर्टिकुलर पर्सन को रिलेटेड टू दैट सेक्टर कुछ नॉलेज नहीं है, तो वहां पे भी वो पर्टिकुलर पर्सन को डिफिकल्टी फेस हो सकती है। इसीलिए कंपनीज, आपने अगर देखा होगा, हाई मतलब मोस्टली जहाँ पे सीनियर पर्सन चाहिए उनको क्या चाहिए रे, एक्सपीरियंस चाहिए और मल्टी डोमेन पे काम किया होना चाहिए उसने, राइट। मल्टीपल डोमेन्स की उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन अगर कुछ कुछ कंपनीज में है ना सिर्फ फ्रेशर्स रहते हैं, राइट। सो उनको लाइक उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं पता होता, उस लाइक उन्होंने उसका पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी नहीं लिया होता, राइट। सो इन दैट सिनेरियो क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ बग फाइंड होने के चांसेस हाई होते हैं, राइट। सो लैक ऑफ स्किल्ड टेस्टर्स, सो these are the somewhat examples for software having bug. So yes, so yeah, this is on the topic side, guys. So yes, I will be just stopping the recording. Just let me know if you have any question on this front so that we